علیکم جی دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویلاگ ہے ہمارا جو سیگمنٹ ہے سفر وسیلہ سفر، اس کے تحت ہم حیدرآباد سے اور ٹنڈو جام جا رہے ہیں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی، اور بہت بہترین ماشاءاللہ ہمارا راستہ ہے، اچھا سفر ہے، موسم بھی بہتر ہو گیا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ آج ہم اپنا جو سیگمنٹ ہے سفر وسیلہ ظفر، آج ہم اس کے حساب سے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ حیدرآباد سے اور ٹنڈو جام کے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑی مشہور ہے، HEC کے رینکنگ میں بھی اس کا اچھا نام ہے، تو آخر کیا وجوہات ہیں اور کیا ایسے وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس خطے میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک اچھی یونیورسٹی کے طور پہ اوپر آ رہے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ پورا پاکستان ہی اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن کیونکہ آج ہمیں جو ہے وہ دو شہروں کے درمیان کا سفر ہے۔ آپ دیکھیں بورڈ نظر آ رہا ہے، اس پہ لکھا الٹے ہاتھ پہ ٹنڈو لیار اور سیدھے ہاتھ پہ میرپور خاص۔ تو اب ہم اس وقت میرپور خاص روڈ کے اوپر ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے دو شہر ہیں، لہٰذا ہم انہی دو شہروں کی بات کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرپور خاص روڈ ہے، اور اس روڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ بہت جو ہے توجہ کے ساتھ اس کی مینٹیننس پہ کام ہوتا ہے۔ درخت لگے ہوئے ہیں، درخت باقاعدہ ان کی ٹرمنگ ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ اس پہ اچھا ٹریفک چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو حیدرآباد جو ہے الحمدللہ پاکستان کا چوتھا بڑا اور سندھ کا دوسرا بڑا تاریخی شہر ہے، جو دریائے سندھ کے کنارے میں آباد ہے۔ اس میں بسنے والے ملنسار اور ایک دوسرے کے عموماً کام آنے والے لوگ ہیں۔ ماحول بہت اچھا ہے یہاں کا۔ موسم میں شام کی جو ہوائیں ہیں وہ بہت زبردست مشہور ہیں یہاں پہ، اور آپ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں کتنے خوبصورت درخت کٹے ہوئے سارے کے سارے، اور الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، الٹے ہاتھ پہ ہمارے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک بھی ہے جو ابھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آپ کو اس الٹے ہاتھ سے گاڑیاں جو آ رہی ہیں، ایک پھاٹک ہے، یہ وہ ٹریک ہے جو پشاور تک جائے گا اور آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ دیکھیے پھاٹک کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں سے ہم خوش قسمت ہیں اس وقت کہ ہمیں جو ہے وہ ٹریفک جام نہیں مل رہا، ورنہ جب پھاٹک چل رہا ہوتا ہے، جب بند ہوتا ہے پھاٹک تو پرابلم آتی ہے۔ دیکھیں آپ کو ریلوے ٹریک نظر آ رہا ہے، اور یہ ریلوے ٹریک ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے موسم کی کہ یہاں کی شامیں بہت شاندار ہیں، جو یہاں پہ تاریخی جگہ ہیں۔ حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، میں نے شروع میں کہا تھا، اس میں مارکیٹ ٹاور ہے، مکھی ہاؤس ہے، یہاں کا پکا قلعہ بہت مشہور ہے، یہاں پھر ایک کچا قلعہ بھی ہے جو کچی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، اس کو بھی بہت عرصہ ہو گیا، وہ بھی تاریخی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ غلام نبی کروڑوں صاحب کے مزار ہیں، تو وہ بڑے یہاں پہ ہیں۔ میانی فارسٹ ہے، ایک پرانا فارسٹ ہے، بہت زبردست ہے، اور میروں کا قبہ ہے، عیدگاہ مسجد ہے، میانی کا مارکا ہوا تھا آخری وہ ہے۔ اب آپ الٹے ہاتھ کے بعد جب آپ سیدھے ہاتھ پہ آئیں گے تو دیکھیں ٹول پلازا شروع ہو گیا، یہ حیدرآباد کی حدود ختم ہونے کی نشانی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ہم یہاں پہ جو ہے اپنا قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جائیں گے۔ میانی فارسٹ کے پاس ہی ایک اور جگہ ہے، وہ کہلاتا ہے میانی کا، جہاں مارکا ہوا تھا۔ یہ آخری جگہ تھی جہاں ہمارے ہوش محمد شیدی، جو سندھ کے جو ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ وہ مجاہد تھا جس نے انگریزوں سے آخر وقت تک جو ہے لڑائی کی تھی۔ اب آپ دیکھیں الٹے ہاتھ کے اوپر ٹریک آپ کو پھر نظر آئے گا، اور یہ ڈیتھا کا جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ ڈیتھا کی ریلوے اسٹیشن کی جو خاص بات ہے ایک وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا یہ ٹریک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو الٹے ہاتھ پہ چلا جائے گا تھوڑا سا، وہ چلا جائے گا پشاور تک، ٹھیک ہے نا، بلکہ آپ سمجھ لیں آگے کا ٹریک کسی زبان میں تورخم بارڈر تک بھی بنا ہوا تھا، وہاں تک چلا جائے گا۔ اور جو تھوڑا سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرے گا، وہ ٹنڈو جام جائے گا، پھر ٹنڈو لیار جائے گا، پھر وہاں سے میرپور خاص جائے گا، پھر وہ چھور کے پاس سے ہوتا ہوا 0 پوائنٹ پہ چلا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انڈیا کا بارڈر ہم جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو جب کسی زمانے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں اس ٹریک کے اوپر جو ہے ریلوے لائن چلنی شروع ہوتی ہے، تو پھر یہ ٹریک استعمال ہوتا ہے جو بہت عرصے تک چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہفتے میں یہاں سے غالباً 2 ٹرینیں جو تھیں وہ یہاں سے سفر لوگوں کو لے کے جایا کرتی تھی۔ حیدرآباد میں جو مشہور جگہیں ہیں اس میں المنظر ہے جو کوٹری بیراج کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ دریائے سندھ کے بالکل کنارے ہے، اور یہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جس میں سے ایک نہر جو ہے وہ 3 نہریں
तो हमारे उल्टे हाथ पे आती हैं, और एक नहर जो है वो कराची शहर को पानी सप्लाई करने के काम भी आती है। सिंध म्यूज़ियम है, बहुत अच्छा तारीखी है। नियाज़ स्टेडियम है, यहाँ मैच होते हैं इंटरनेशनल लेवल के भी। रेशम के लिए अच्छी जगह है देखने को, घंटा घर है, रानी बाग है और बॉलीवुड मॉल है। ये उल्टे हाथ पे अब एक ट्रैक आ रहा है, एक ट्रेन आ रहा है, आप देखें उल्टे हाथ के ऊपर ये बैंक्वेट बन गया है कि अब शहर से बाहर जो है वो लोग खाना खाने और शादियां करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बैंक्वेट भी है तो यहाँ पे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रिमोट एरिया है, शुरू हो गया है, दोनों शहर ख़त्म हो गए हैं और ये निस्बतन एक कम आबादी वाली जगह है। और माशाल्लाह से ये यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी तकरीबात करने के लिए भी आते हैं और खाना खाने के लिए भी आते हैं। हैदराबाद की जो मज़ीद मशहूर चीज़ें अगर आप देखें खाने की, तो उसके अंदर यहाँ पूरे पाकिस्तान में, बल्कि शायद पाकिस्तान से बाहर भी, बम्बई बेकरी का केक बड़ा मशहूर है, रबड़ी बड़ी मशहूर है यहाँ की ब्राउन बहुत अच्छी है, और पल्ला मछली का तो लोग कहते हैं जवाब ही नहीं है। सही है। दीगर जो मशहूर अशिया हैं जो आप खा तो नहीं सकते लेकिन बहरहाल अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप देखें, इससे पहले कि मैं और अशिया बताएं, उल्टा आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये सारा का सारा टंडो जाम का इलाका एक तरह से शुरू हो गया है, और टंडो ये जाम मशहूर है आमों के लिए। सारे आम के दरख्त लगे हुए हैं, इस वक्त आम का सीज़न भी है। तो अगर आप हमारे पास टाइम हुआ तो वापसी पे शायद हम आपको ये भी सब कुछ दिखाएं। टंडो जाम जो है वो माशाल्लाह आम के लिए भी मशहूर है और ये गुलाब के लिए भी मशहूर है। तो बाकी चीज़ें हम आपको बाद में टंडो जाम की दफ़ा में बताएंगे। हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, अजरक के बहुत खूबसूरत होती हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर और डिफ्यूज़र बनाने वाली कंपनी वो हैदराबाद की, उसके फ्री बहुत मशहूर है। फिर टॉप ब्रांड मोटरसाइकिलों की 8-9 जो मोटरसाइकिलों की कंपनी है जो पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन 8-9 हैदराबाद के अंदर है। दूसरी जो बड़ी फजीलत है और शहरों के ऊपर हैदराबाद में, वो ये कि एक मुकम्मल सकाफती शहर है जिसमें तमाम पाकिस्तान के रंग अपनी शनाख्त के साथ नज़र आते हैं। आप उल्टे हाथ पे देखें फिर आपको वही मंजर नज़र आएगा माशाल्लाह से, ठीक है ना, जो जिसका जिक्र किया था। अब जैसे पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि बिल्डर्स जो है वो शहर से बाहर निकल के खूबसूरत कॉलोनीज बना रहे हैं। तो इस वक्त हैदराबाद से टंडो जाम जाने वाले रोड के ऊपर भी बिल्डर्स जो है वो सारे काम कर रहे हैं। ये मोटरवे नहीं है, ये लाजवाब 2 शहरों को मिलाने वाला रोड है, लिहाजा यहाँ पे आपको कभी कभी जो है मनचले मोटरसाइकिलें चलाते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन मजमूई तौर पे पैसिव माहौल है यहाँ का। तो हम हैदराबाद की बात कर रहे थे कि हैदराबाद में जो लोगों की जो सकाफत की शनाख्त है, लोग उसके साथ ही रहते हैं, जबकि बड़े शहरों में जाके वो बदल जाते हैं, अपनी सकाफत को हाइड कर लेते हैं। लोकेशन देखा जाए तो हैदराबाद जो है अच्छा। दूसरी बात है कि यहाँ अभी तक वैल्यूज़ हैं, माशरे की भी इक़्तिदार है इसके अंदर, माशरे की भी इक़्तिदार है और ख़ानदान की भी इक़्तिदार है। ये देखिए खेत खलियान शुरू हो गए माशाल्लाह से, और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत सुबह का मंज़र है, लेकिन हाँ अभी दोपहर नहीं हुई है, ये सुबह आपको समझना 8-9 बजे के दरमियान का वक्त है। और ये हम जो है वो जा रहे हैं, ये इसका बाईपास आ गया, बड़ा खूबसूरत बाईपास है जो डिज़ाइन किया है माशाल्लाह से। हमारे डिपार्टमेंट जो है वो जो काम करते हैं, हमें भी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, जो सियासी जमात अच्छा काम करती है, उसको अप्रिशिएट करें। तो ये इसका बाईपास है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सही है। ये वहाँ से होता हुआ जा रहा है तो टंडो जाम का, और लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है हैदराबाद की। इसकी मैं 4 तरफ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसके सारे 4 इसके तमाम तरफ जो है ना वो शहर हैं, छोटे शहर हैं, टाउन्स हैं। इसीलिए यहाँ का जो लोगों का सोचने का अंदाज है वो शहरी और देहाती देही दोनों का कम्बिनेशन है। इसीलिए यहाँ बहुत कमर्शलाइजेशन भी नहीं है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं। 7 रास्ते हैं जो यहाँ से निकलते हैं। देखो उल्टे हाथ में कितनी खूबसूरत ये सोसाइटी है, ठीक है ना, हरमैन सोसाइटी है, बहुत अच्छी डिज़ाइन हुई है। और हम जो है इसी तरह देखते हुए चले जाएंगे मंजर। और इस वक्त आसार शुरू हो गए हैं टंडो जाम के, और 7 रोड्स हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ जगहों पे निकलते हैं। कराची की से हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर की तरफ हो, चाहे वो बदीन में जो है रन ऑफ कच्छ की तरफ हो, चाहे वो ठट्टा की तरफ हो। और 5 जो है यहाँ से ट्रेन के ट्रैक्स निकलते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ा खुशकिस्मत
खूबसूरत शहर है। दरिया सिंध सबसे बड़ा जो इसका पार्ट है वो हैदराबाद में। कभी जब पानी हुआ करता था बहुत ज़्यादा तो 10-10 लाख क्यूसिक पानी भी सैलाब में यहाँ से जो है पास हुआ है। और ये सारी की सारी चीज़ें अब हम पहुँच गए हैं तकरीबन टंडो जाम में। माशाल्लाह टंडो जाम जो है ये अगर देखा जाए तो बहुत ही मेहमान नवाज लोगों का शहर है। और यहाँ के लोग तो हैं खूबसूरत, लेकिन ज़मीन भी बहुत ज़रख़ीज़ है। गुलाब और आमों का शहर है, जैसे मैंने जिक्र किया था। मशहूर जगहों में सबसे मशहूर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, जिसके तकरीबन 2 कैंपसेस हैं। इसमें 5 फैकल्टीज़ हैं और 36 डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं ये। हालांकि ये एक रिमोट एरिया में है, लेकिन ये बड़े कॉम्पिटेबल जो है वो इन्वायरमेंट में अपने स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे हैं। दर्स व तदरीस में जो है वो इन्वॉल्व है। 70 की दहाई में ये वजूद में आई थी और हेल्थ की रैंकिंग में ये टॉप नंबर्स में शामिल है। इसकी क़यादत बड़ी विजनरी है माशाल्लाह। अब जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं उन्होंने बहुत डायनेमिक अंदाज में इसको उठाया है और टीम इनकी बड़ी स्मार्ट है। सारे के सारे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये टंडो जाम का शहर आ चुका है और क्योंकि अभी बाईपास जो है अंडर प्रोसेस है तो ये शहर में थोड़ा सा आपको रश मिलेगा। हम इसे मस्बत भी समझ रहे होते हैं, ठीक है ना, कि ये माशाल्लाह लोग अभी मौजूद हैं। और देखें बहुत ज़्यादा कोई अफरा तफरी आपको इसमें नज़र नहीं आ रही है। ये मेन बिल्कुल यहाँ की जगह है। आगे जाके फिर हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। तो सब जो है हमें पता है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। ये वो दरख्त है जिसके लिए कहा जाता है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि माशाल्लाह ये 200 साल पुराना दरख्त है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे होते हैं। और बाकी ये बिल्डिंग है, ये एजुकेशन की फैकल्टी है ये, और काफ़ी इम्प्रूव कर रही है यूनिवर्सिटी। और हमारा वापसी का सफ़र है टंडो जाम में। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम अपने सुनने वालों के लिए वहाँ मालूमात हासिल करने गए थे कि माशाल्लाह जो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम है उसके वो जो ग्रो कर रही है और उसके HEC की रैंकिंग में भी इतना अच्छा नाम आ रहा है। क्या वजूहात हैं तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह वीडियो शेयर करेंगे। इस वक्त ये डेथा के स्टेशन के पास जगह है, यहाँ मारवी थादल के पास हम रुके हुए हैं। यहाँ का थादल बड़ा मशहूर है। आप लोग जब भी यहाँ से गुजरे यहाँ का थादल ज़रूर पीजिएगा, ठीक है। असल मकसद अगर हमारे दाएँ तरफ देखें तो आपको खेत खलियाँ नज़र आएंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है। मजमूई तौर पर मौसम अच्छा है, हवा तेज़ है, लिहाजा गर्मी का जोर टूटा हुआ है। और बस अब ट्रेन के भी आने का वक्त होने वाला है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि थादल पिएंगे तो इंशाल्लाह हम ट्रेन को भी क्रॉस करेंगे। ये वो जगह है जो मैंने जाते हुए कहा था, जहाँ से मेन ट्रैक पेशावर के जाने वाला और साइड ट्रैक इंडिया जाने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने पे। अल्लाह हाफ़िज़।